All right, so we will start today's session with a very quick revision of what we have seen in the last lecture. So पिछले lecture में, as you remember, we started with rotational dynamics, और आपको याद होगा उसमें part A जो था that was circular motion. Motion क्या होता है? We have seen in detail. It is change of position of object with time. Then we have seen there are two types of motion: linear motion and angular motion. When a particle moves along a straight line, then the motion is said to be linear. If a particle moves along a curved path, then the motion is said to be angular motion. Then हमने linear और angular motion के parameters को compare कर लिया था, क्योंकि जब भी motion की बात होगी, you will be measuring displacement, velocity and acceleration. So for the case of linear displacement, आप उसको denote करते हो x bar से, उसका unit होता है meter and dimension is L raised to 1. Similarly, for angular case, you have angular displacement in which you denote angular displacement by theta bar. Unit is radian and it is a dimensionless quantity. Angle का कोई dimension नहीं होता है. m0, l0 and t0. In case of linear motion, you have velocity, linear velocity, which is rate of change of displacement. इसका ऐसा unit था मीटर पर सेकेंड, dimensions था l1 t minus 1. Similarly, for angular velocity, you denote it by omega bar, that is rate of change of angular displacement. SI unit is radian per second, and dimensions are t raised to minus 1. Acceleration, if you remember, is dv bar by dt. SI unit is meter per second square, and dimensions are L1 t minus 2. Similarly, for angular displacement, you have alpha bar d omega bar by dt, that is radian per second square, and dimensions are t to the power minus 2. Then we saw equations of kinematics. Equations of kinematics, चार equation थे. B equal to u plus at, उसका equivalent angular motion में था omega final equal to omega initial plus alpha t. You have second equation of kinematics, s equal to ut plus 1/2 at square, उसका equivalent था theta equal to omega initial t plus 1/2 alpha t square. Third equation of kinematics was v square equal to u square plus twice as. इसका equivalent angular motion में omega final square equal to omega initial square plus 2 alpha theta. Similarly, you have fourth equation of kinematics, Sn equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. इसका equivalent है theta n equal to omega initial plus alpha by 2 into 2n minus 1. Then we started with circular motion. Actually उससे पहले हमने कंपेयर किया था क्वांटिटीज. आपको याद होगा लीनियर मोशन में आप डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हो या x और s डिपेंड्स, वेलोसिटी को v और एक्सीलरेशन को a. सिमिलरली एंगुलर में थीटा ओमेगा अल्फा, तो सिर्फ यहाँ पे इनके साथ r को लिखते जाओ, यू गेट रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड angular quantities, right? Then we started with circular motion, और as you remember, if a particle, हमारे पास अगर एक object है, एक particle है which is performing circular motion along the circumference of circle with constant speed, उसको आप बोलते हो uniform circular motion. तो in general circular motion का मतलब क्या होता है? You have a particle, आपके पास एक object है या particle है जो along the circumference move हो रहा है, speed constant हुआ, तो that motion is called as uniform circular motion. Very good. और if you remember again, particle का speed is constant at every point. अगर particle A पे होगा या फिर B पे होगा या किसी और point पे होगा, speed is always same. इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि व्हाट इज यूनिफॉर्म? स्पीड, बट व्हाट इज चेंजिंग इज वेलोसिटी. वेलोसिटी का डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंट, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट. क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज में या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा, दोनों में से जो कुछ भी चेंज होगा देयर इज चेंज इन द क्वांटिटी. तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन.
अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है इसका मतलब देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर चेंज होता है तो हम बोलते हैं देयर इज एक्सेलरेशन। और इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर आपको याद होगा यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर में यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू डिनोट डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल आई कैप मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप मतलब अलोंग जेड एक्सिस। तो सिमिलरली अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल से सरकमफेरेंस पे जा रहा हूं तो सेंटर से सरकमफेरेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हो? रेडियस। तो सेंटर से सरकमफेरेंस की डायरेक्शन को क्या बोलोगे? रेडियस कैप, आर कैप। तो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स सरकमफेरेंस, राइट। बट हमारे केस में मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हम लोगों को जो एक्सेलरेशन मिलता है वो कहाँ है? इनवर्ड्स, मतलब टुवर्ड्स सेंटर, मतलब सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ। तो डायरेक्शन के लिए क्या यूज करोगे? माइनस आर कैप। गुड। देन 11th में यू हैव ऑलरेडी सीन एक्सेलेरेशन का इक्वेशन v स्क्वायर बाय आर, राइट। या फिर आपको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा, तो v स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास? आर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली v इक्वल टू आर ओमेगा से हमने पहले देखा यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा जस्ट नाउ, तो v इक्वल टू आर ओमेगा से यू कैन राइट डाउन r इक्वल टू v बाय ओमेगा। वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे v बाय ओमेगा, तो एक ओमेगा कैंसिल, तो यू विल गेट a इक्वल टू v ओमेगा। तो ये तीन इक्वेशन है आपके पास फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्री मतलब सेंटर, पिटल मतलब टुवर्ड्स, तो ये टुवर्ड्स सेंटर है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है अगर, तो वो तीनों इक्वेशंस यू ऑलरेडी नो, a इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर, या फिर इट इज आर ओमेगा स्क्वायर, और यू हैव v ओमेगा। सिर्फ अभी हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर बना देंगे। और डायरेक्शन के लिए r कैप, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या था? टुवर्ड्स सेंटर, तो माइनस आर कैप, यहाँ पे भी माइनस आर कैप माइनस आर कैप, राइट। तो इन द लास्ट सेशन हमने यहाँ तक कवर किया था। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो अहेड। तो जो सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हाट हैपेंस इन दिस मोशन? देखो डिफाइन करना इज सो सिंपल, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इस केस में चेंज क्या है। In this case, you again have a particle which is performing circular motion along the circumference of circle. सिर्फ इस केस में the particle is moving with non-uniform speed, मतलब speed of the particle is not same at every point, उसका speed change हो रहा है। अगर ये particle A point पे है तो speed is something else, अगर यही particle B point पे आ गया तो speed is something else, right? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड ऑफ द पार्टिकल वाज सेम एवरीवेयर, वेलोसिटी का डायरेक्शन वाज चेंजिंग। बट इस केस में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड भी सेम नहीं है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो दोनों कंपोनेंट्स दे आर नॉट सेम, स्पीड इज आल्सो चेंजिंग एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन इज आल्सो चेंजिंग, क्योंकि डायरेक्शन तो इट इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। अगर A पॉइंट पे है तो भी अलोंग टेंजेंट है, B पे है तो अलोंग टेंजेंट है, तो डायरेक्शन तो वैसे भी चेंजिंग है, राइट। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉल क्लॉक को देखोगे तो वॉल क्लॉक में तीन डिफरेंट हैंड्स होते हैं, आवर हैंड, सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड, राइट। तो वो जो मोशन है चाहे वो आवर हैंड हो या मिनट हैंड हो या फिर सेकेंड हैंड हो, दिस ये जो मोशन है दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि स्पीड इज सेम एट एवरी पॉइंट, राइट। बट फॉर एग्जांपल
As I told you, कल ही एग्जाम्पल दिया था आपको मैंने. You go to this जत्रा, वहाँ पे बॉल ले लिया, चेंडू, you start circulating it in vertical motion. तो vertical circular motion is non-uniform. क्यों? Because think, जब पार्टिकल यहाँ पे है, अब इसको जाना है ऊपर, ऊपर जाएगा तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा मतलब स्पीड उसका कम हो जाएगा, और ऊपर से जब नीचे आएगा तो ये टूवर्ड्स ग्रेविटी आ रहा है, टूवर्ड्स ग्रेविटी आएगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा. वेरी गुड. ये तो आपके साथ भी होता है जब हम कहीं जाते हैं ट्रेकिंग के लिए. व्हेन यू गो अप यू नीड मोर एनर्जी बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट gravity, but while coming down you come down very quickly without spending a lot of energy. So that is why even for this ball, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो in that case speed will go on decreasing, but when it comes down speed will go on increasing. Hence this type of motion is nothing but non-uniform circular motion. So point by point you should know. Number one, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो वी विल स्टार्ट बाय डिफाइनिंग इट. तो सबसे पहले आप बोलोगे व्हेन अ पार्टिकल performs motion along the circumference of circle, with varying speed, with changing speed, with varying speed, with non-uniform speed, तीनों ही words they are good, then the motion is said to be non-uniform circular motion. Then the motion is said to be non-UCM, non-uniform circular motion. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में इफ यू रिमेंबर देयर वाज ओनली वन एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन था टुवर्ड्स सेंटर. अब इस केस में देयर आर टू एक्सेलरेशंस, one is towards center and one is along tangent. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों चीजें चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज स्पीड. तो when you have only change in, याद रखना ये words, listen to this carefully, when you have change of direction then the acceleration is towards center, when there is change of speed then the acceleration is towards tangent. मैंने कल ही बताया था a equal to dv by dt. अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या तो अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी. So you will have two different accelerations here. एक होगा along tangent AT और एक होगा towards center AR. इसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल कंपोनेंट या रेडियल कंपोनेंट, और इसको आप बोलते हो टेंजेंशियल कंपोनेंट. नाउ गोइंग बैक टू बेसिक्स ऑफ 11th, वेक्टर्स. तो अगर आपको याद है इन केस ऑफ वेक्टर्स, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर्स एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यू हैव टू वेक्टर्स, वन वेक्टर a बार, अदर वेक्टर b बार, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या था? अलोंग द डायगोनल, राइट. तो ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, इसको मैं नाम दे देता हूं r बार. और अगर आपको याद होगा इन जनरल a बार और b बार क्या है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट. अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट हाउ डू यू राइट इट? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वेरी गुड. ऐसा क्यों? क्योंकि a बार एंड b बार आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, राइट. बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बट इन केस ऐसा भी हो सकता है, यू मे आल्सो हैव दिस, हमारे पास दो वेक्टर्स है, दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आपके पास a वेक्टर है और एक b वेक्टर है एंड बोथ आर एट एंगल थीटा टू ईच अदर. इन दिस केस जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट रिजल्टेंट वेक्टर
इज अलोंग डायगोनल, इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है r का, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। वेरी सिंपल केस। सिर्फ जस्ट इन केस मैं अगर a बार को परपेंडिकुलर कर लेता हूं, इफ आई डू दिस परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। व्हाट इज cos ऑफ 90? 0, तो ये यहां से गायब हो जाएगा एंड यू विल गेट अगेन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेसिक्स, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, इफ दे आर एट एन एंगल थीटा टू ईच अदर, रिजल्टेंट वेक्टर इज फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और पूरे का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। गुड। तो अब व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन यूसीएमपी, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है। तो दो कंपोनेंट है, एक है टुवर्ड्स सेंटर सेंट्रीपिटल या रेडियल, एक है टुवर्ड्स टैंजेंट अलोंग द टैंजेंट। तो ये दोनों वेक्टर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि रेडियस और टैंजेंट ये परपेंडिकुलर ही होते हैं। डू यू सी, दे आर एट 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी अलोंग द डायगोनल, राइट। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट, राइट। तो जब आपको एग्जाम में लिखना होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इज कि आपको कॉन्सेप्ट समझा है, नंबर 1। अगर समझा है तो उसको लिखो। तो सबसे पहले व्हेन यू वांट टू राइट इट डाउन इन एग्जाम, तो स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस मोशन। यू हैव अ पार्टिकल, आपके पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल बट विथ वेरिंग स्पीड। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि वेरिंग स्पीड है। तो अब सिंस द स्पीड इज वेरिंग चेंजिंग, there are two components of acceleration. Since the speed is varying, there are two components of acceleration. There are two components of acceleration. उसमें पहला कंपोनेंट है फर्स्ट रेडियल कंपोनेंट, और ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए सफिक्स आर, ये कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम चेंज इन डायरेक्शन। सो इट कम्स फ्रॉम चेंज इन डायरेक्शन, change in direction of velocity, right, and it is along the center. It is directed towards the center. It is directed towards the center. Towards the center. और जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हमने बोला है टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है हम इसको डिनोट करते हैं ए सफिक्स टी, राइट। इट कम्स फ्रॉम चेंज इन स्पीड, सो इट कम्स फ्रॉम चेंज इन स्पीड, इट कम्स फ्रॉम चेंज इन स्पीड ऑफ पार्टिकल, चेंज इन स्पीड। और इसका डायरेक्शन क्या है? अलोंग tangent. It is directed along the tangent, along the tangent. तो क्योंकि आपके पास दो कंपोनेंट्स है और दोनों के दोनों, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों वेक्टर हो गए ARB और ATB, तो दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, देयरफॉर रिजल्टेंट of these two components, of these
two components is, रिजल्टेंट आप कैसे लिखते हो, a equal to under root of ar square plus at square. And as you can see from this diagram, ये जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है इट इज नॉट टुवर्ड्स सेंटर, ये सेंटर की तरफ नहीं है, राइट? सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन डज नॉट पॉइंट टुवर्ड्स सेंटर. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन does not point towards center, right? So this is all you need to know about non-uniform circular motion, right? Notes में भी यही लिखा है, little words are changed, so don't worry. As far as physics is concerned, वहाँ पे कुछ गलत नहीं है, it is all good, correct. सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग होता है, तो जो नोट्स में मैंने दिया है वो थोड़ा इन डिटेल होगा, और राइट, तो सीक्वेंस माइट बी डिफरेंट. देन अब जो अगला टॉपिक है, तो आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूसीएम में एक ही कंपोनेंट है एक्सीजन का टुवर्ड्स सेंटर, और नॉन यूसीएम में देयर आर टू, वन टुवर्ड्स टैंजेंट एंड अदर टुवर्ड्स सेंटर. गुड. एंड रिजल्टेंट इज नॉट टुवर्ड्स सेंटर. अब if you remember Newton's laws of motion from 11th standard, तो तीन laws है Newton's laws of motion. there are three. पहला आपको ये बताता है law of inertia, of course. मतलब if you have a body, if it is at rest, it will remain at rest, or if it is moving with constant velocity, it will keep on moving with constant velocity unless an external unbalanced force is applied to it, right? तो जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तब तक बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता है. right? तो जब तक आप एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता है. स्टेट मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है, इट इज वन स्टेट. ऑल ऑफ यू आर सिटिंग नाउ, सो इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट. इफ यू हैव अ बॉडी, हमारे पास एक बॉडी है which is moving with constant velocity. For example, if I start moving along east with velocity of 10 meter per second, तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, 10 meter per second I cap. तो मेरा वेलोसिटी या जो बॉडी रेस्ट पे है उसका स्टेट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा. क्योंकि अगर आप बैलेंस फोर्स अप्लाई करते हो, मतलब अगर आपने दो साइड से इक्वल फोर्स लगा दिया, इफ यू अप्लाई इक्वल फोर्सेस फ्रॉम बोथ दिस साइड्स, राइट, तो क्या होगा, दे विल कैंसल आउट. तो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, किसने रोका इसको स्टेट चेंज नहीं करने से? इसके खुद के मास में. तो व्हाट इज स्टॉपिंग द बॉडी? बॉडी को कौन रोक रहा है स्टेट चेंज करने से? उसका खुद का मास. तो मास को आप क्या बोलते हो? इनर्शिया, राइट? दैट इज व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. तो सेकेंड लॉ आपको ये बताता है, देखो पहला लॉ दिस टेल्स यू जब तक एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया अनबैलेंस्ड तब तक बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा. तो सेकेंड जो आपके पास लॉ है, इट टेल्स यू अगर आपने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, बॉडी का स्टेट चेंज होगा. स्टेट चेंज होगा मतलब उसका एक्सेलरेशन होगा. एंड दैट सेकेंड लॉ इज गिवन बाय, इफ यू रिमेंबर, F equal to dp by dt. तो फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो इट इज dp by dt. और अगर आपको पता होगा, वैसे पता होना चाहिए, dp मतलब चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट? फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी. कौन सा वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी. माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो F इज इक्वल टू, मास को कॉमन निकाल लिया, v माइनस u बाय t. बट ये क्या होता है? एक्सेलरेशन. तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? तो न्यूटन सेकेंड लॉ आपको पता होना चाहिए, इट इज F इक्वल टू ma.
तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो आई होप आपको इक्वेशन तो याद होगा ही, बट यू हैव टू गो लिटिल बियॉन्ड इन डिटेल। इसका मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा ही, बिना फोर्स के देयर कैन नॉट बी एक्सेलरेशन। तो अनलेस यू हैव एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स यू कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन। बॉडी का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए आपको? फोर्स, राइट। अब जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे, राइट, हमने ये बोला कि मोशन यूनिफॉर्म है लेकिन एक्सेलरेशन है कहाँ पे है? टुवर्ड्स सेंटर है। लेकिन एक्सेलरेशन होने के लिए क्या चाहिए? फोर्स होना चाहिए, राइट। इसका मतलब वहां पे एक फोर्स भी है। और अगेन बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, जब आप लिखते हो a बार इक्वल टू b बार या फिर a बार इक्वल टू सम नंबर इनटू b बार, इसका मतलब आप क्या बता रहे हो? जो डायरेक्शन b बार का है वो डायरेक्शन a बार का है। वेरी गुड। तो ये दो चीजें याद रखो। You need to remember these two things. Number one, if there is acceleration, there is a force. बिना फोर्स के you cannot produce acceleration. Number two, अगर आप लिखते हो F equal to ma, तो if you are writing down F equal to ma, इसका मतलब ये होता है जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है वही डायरेक्शन फोर्स का है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या था? टुवर्ड्स सेंटर। तो फिर एक फोर्स ऐसा है जिसका डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड्स सेंटर, राइट। तो जैसे हमने एक्सेलरेशन को बोला था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ पे फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो व्हाट यू नीड टू नो इज, आपको ये पता होना चाहिए इन केस ऑफ मोशन देयर आर फोर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब हमको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, तो पहले हम डिफाइन कर लेंगे सेंट्रीपिटल को, देन वी विल गो टुवर्ड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एज फार एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज कंसर्न्ड, ये कहां से आया? इस फोर्स का सोर्स क्या है? Already we know whenever you have a particle performing UCM, there is a acceleration towards center, and according to Newton's laws of motion, second law of motion, to produce acceleration you need a force. So we know that to produce, we know that according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, a force is required, a force is essential or required to produce acceleration. To produce acceleration. In case of UCM, we have an acceleration. Which is directed toward the center. Hence, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो hence there must be a force. Hence there must be a force directed towards center. और ये जो फोर्स है which is towards center, इसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल. This force is known as centripetal force. Centripetal force. और obviously आपको
ऑलरेडी पता है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma, राइट? सो वी नो दैट व्हाट वी नो इज, हमको क्या पता है? हमको पता है F इज इक्वल टू ma, ma, ma एंड ma। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ए क्या है? सेंट्रीपिटल है। क्यों? क्योंकि हमने कौन से मोशन की बात की? यूसीएम। यूसीएम में तो टेंजेंशियल होता नहीं है, होता कौन है? सेंट्रीपिटल, करेक्ट। तो इन दैट केस ए, ए के तीन इक्वेशन थे अगर आपको याद होगा, आज हमने रिवाइज किया, जस्ट टुडे वी रिवाइज्ड इट अगेन। तीन थे, तीन, वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर एंड वी ओमेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यू विल राइट डाउन इंस्टेड ऑफ ए, यू विल राइट डाउन वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी ओमेगा। आ गया इक्वेशन। व्हाट इज सो डिफिकल्ट? फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों लगता है मुझे? तो कभी समझ में नहीं आता, बिकॉज़ इट्स वेरी सिंपल थिंग। यू जस्ट हैव टू मेक अ कनेक्शन। हमने क्या सीखा है और आगे क्या करना है। अब ये एज यू कैन सी, ये जो तीन इक्वेशन है, ऑफ कोर्स एम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड एम वी ओमेगा, ये स्केलर फॉर्म है, लेकिन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म एफ बार इक्वल टू एम ए बार, राइट? अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में लिख चुके हैं, इफ यू रिमेंबर, याद होगा, होना ही चाहिए। इट वाज वी स्क्वायर बाय आर, आर कैप विद अ माइनस साइन, हो गया। या फिर इट इज माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप, या फिर इट इज माइनस एम वी ओमेगा आर कैप। मिल गया आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। गुड। तो आर वी गुड अप टू दिस पॉइंट? इजी। तो क्योंकि यूसीएम है, यूसीएम में सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, तो एक्सेलरेशन एक ही कंपोनेंट है टुवर्ड्स सेंटर। क्योंकि एक्सेलरेशन है तो फोर्स होना चाहिए, तो फोर्स के बिना यू कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कहाँ है? टुवर्ड्स सेंटर। अब जो दूसरे टाइप का फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल, इट इज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि इफ यू रिमेंबर, मतलब पता तो होना चाहिए वैसे, इफ यू नो दिस, आपके घर में जो वॉशिंग मशीन होता है ना, राइट? अभी मॉडर्न डे वॉशिंग मशीन में तो यू हैव जस्ट वन चेम्बर, उसी में कपड़े धोए भी जाएंगे, उसी में ड्राई भी होंगे। लेकिन ओल्ड वॉशिंग मशीन में दो चेम्बर होते थे, वन इज टू वॉश, अदर इज टू ड्राई। तो जो ड्रायर था उसका, उसको सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। कभी देखोगे तो लिखा होगा सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्यों? क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से योर क्लोथ्स दे गेट ड्राइड। ड्राइड अप कैसे होंगे? तो you have a chamber and then you put a lot of clothes here. आपको जो क्लोथ को ड्राई करना है, you keep clothes over here, you put a lot of clothes and then आप मशीन चालू कर देते हो। This dryer spins। जब ये ड्रायर स्पिन होगा तो क्या होगा? ये क्लोथ यहाँ पे जाएगा, मतलब दे विल स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द चेम्बर, राइट? और इस चेम्बर में, अगर आपको याद है या देखा है, कभी नहीं देखा होगा तो आज घर पे जाके देख लेना, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, करेक्ट? और होता क्या है, कपड़े तो बहुत बड़े हैं लेकिन होल्स आर स्मॉल। तो व्हेन दिस ड्रायर स्पिन्स, इन दैट केस एवरीथिंग इज थ्रोन आउटवर्ड्स, मतलब सेंटर की तरफ नहीं, सेंटर से अवे। अब एवरीथिंग मतलब क्लोथ, और क्लोथ के अंदर क्या है? पानी। अब कपड़ा तो बाहर निकल नहीं सकता ना, तो क्या निकलेगा बाहर? पानी। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ड्राइंग का, इट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए उसको मशीन को, चेम्बर को नाम भी बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज, राइट? गुड। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने से पहले अगेन 11th का बेसिक इज रिक्वायर्ड। तो यू शुड नो समथिंग एंड दैट इज okay. So before we start talking about
centrifugal force. What we should know is 11th में again in chapter number 4 जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे थे तो you have learned two different frame of references, एक inertial एक नॉन inertial. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अच्छे से समझना है तो आपको पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए. उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. यू शुड नो व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मतलब क्या है पहले ये समझ लो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव, हमारे पास एक पार्टिकल है, लेट अस से वो ए पॉइंट पे है, तो इसका लोकेशन बताने के लिए, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा ना कि ये पार्टिकल कहाँ पे है. इवन दिस लोकेशन जहाँ आप बैठे हो, ये क्लासरूम कहाँ पे है, तो कुछ तो बताओगे. ये कॉलोनी इस लैंडमार्क से इतना दूर, इस लैंडमार्क से ईस्ट में इतना दूर. तो सिमिलरली अगर आपको एक पार्टिकल का पोजीशन बताना है तो सबसे पहला काम आप करते हो कहाँ से मेजर करना है. यू कैन मेजर फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस. तो जहां से भी मेजर करते हो उसको बोलते हो ओरिजिन, राइट. उसको बोलते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आई कैन मेजर द पॉइंट ए फ्रॉम सम अदर पॉइंट और इस पॉइंट को बोल दूंगा मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट. मतलब रेफर कहाँ से कर रहे हैं, मेजर कहाँ से कर रहे हैं. तो सबसे पहले पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, है ना. एक्स वाई कब, अगर आपके पास टू डायमेंशंस है सिर्फ, अगर सिर्फ एक डायमेंशन तो ओनली एक्स, दो है तो यू हैव एक्स एंड वाई, तीन है तो यू हैव एक्स वाई जेड, राइट. अब व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब मुझे मोशन मेजर करना होगा, मोशन को मेजर करना मतलब डिस्प्लेसमेंट मेजर करना, वेलोसिटी मेजर करना और एक्सेलरेशन मेजर करना. व्हेन आई से मोशन को मेजर करना है मतलब हमको क्या मेजर करना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो इस केस में जब आपको डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मेजर करना है तो यू नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एग्जांपल, फिजिक्स को हमेशा एग्जांपल से समझना चाहिए. आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड दिस बिल्डिंग, मैं रोड के साइड में खड़ा हो गया और व्हीकल्स को जाते हुए देख रहा हूँ, राइट. तो आई माई सेल्फ एम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्योंकि मैं मेजर कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टैंडिंग एट रेस्ट, राइट. या फिर मैं खुद चल रहा हूँ बट माई मोशन इज यूनिफॉर्म, मतलब मेरा स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और मैं चलते चलते मेजर कर रहा हूँ. तो ये जो दो केस है, आई वॉज स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड मेजरिंग द मोशन ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट, या फिर मैं खुद आई एम वॉकिंग बट विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड आई एम मेजरिंग द मोशन. ये दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन नहीं है. किसका नहीं है, जो मेजर कर रहा है उसका नहीं, राइट. इसको बोलते हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो यू हैव नंबर वन, जो मेजर कर रहा है, जिस फ्रेम से मेजर कर रहा है, जिस फ्रेम से मेजर कर रहा है का क्या मतलब है, मैं वापस समझा देता हूँ. आई एम स्टैंडिंग एट रेस्ट, मैं मूव नहीं हो रहा हूँ लेकिन मैं मोशन को मेजर कर रहा हूँ. किसके मोशन को, किसी और ऑब्जेक्ट के मोशन को, राइट. तो जो मेजर कर रहा है या जहां से मेजर कर रहा है इट इज एट रेस्ट. या दूसरा केस, जो मेजर कर रहा है वो खुद मोशन में है बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर मैं गाड़ी में बैठ गया एंड दैट व्हीकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. तो दोनों ही केसेस में द वन हु इज मेजरिंग और फ्रॉम वेयर द पर्सन इज मेजरिंग both are either at rest or moving with constant velocity. यहाँ पे एक्सेलरेशन है क्या, नहीं. तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप बोलते हो इनर्शियल, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब जब आप न्यूटन्स लॉ की बात करते हो, स्पेसिफिकली सेकेंड लॉ, तो यू से दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. किसका एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का. कौन से ऑब्जेक्ट का, जो आप मेजर कर रहे हो, आप खुद नहीं. यू आर स्टैंडिंग, यू आर लुकिंग एट सम व्हीकल, तो उसका एक्सेलरेशन. तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो भी है, जब ये डिराइव हुए थे तब ये किसी ने सोचा ही नहीं कि जो खुद मेजर कर रहा है वो भी तो एक्सेलरेट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल,
मैं गाड़ी में बैठ गया और मेरा फ्रेंड ड्राइव कर रहा है और ही इज चेंजिंग वेलोसिटी एंड आई एम लुकिंग एट सम अदर ऑब्जेक्ट, सम अदर व्हीकल, और मैं उस व्हीकल का मोशन को मेजर कर रहा हूँ, मे बी डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, लेकिन मैं खुद मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक्सेलरेटेड है। अब प्रॉब्लम क्या है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन दे आर वैलिड, मतलब F इक्वल टू ma आप सिर्फ तब लिख सकते हो जब the one who is measuring मतलब frame of reference is at rest or moving with constant velocity। तो थोड़ा पिक्चर को क्लियर रखो, यहाँ पे दो अलग अलग people are involved, one who is measuring the motion and other who is in motion, right? तो ऐसा करेंगे, हम बोल देंगे पर्सन नंबर 1 who is observer, इसको मैं नाम दे दूंगा observer। पर्सन नंबर 2 who is moving, let us call it as P। तो ये जो पर्सन नंबर 2 मूव हो रहा है उसके मोशन को कौन मेजर कर रहा है, नंबर 1 ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर खुद कहाँ पे है, रेस्ट पे है, या खुद मूव हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये जो फोर्स इक्वल टू m इंटू ए लिखते हो, इट इज वैलिड। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो जब ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पे है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है। बट इमेजिन इस ऑब्जर्वर का खुद का ही एक्सीलरेशन होने लग गया, देन आप इस इक्वेशन को लिख ही नहीं सकते, इट इज नॉट वैलिड, राइट? क्यों? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इटसेल्फ एक्सेलरेटेड नाउ। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हो नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गुड। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि खुद ऑब्जर्वर मतलब खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड था, तो मैं F इक्वल टू ma ये अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसको अप्लाई करने के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना पड़ता है जिसको आप बोलते हो सूडो फोर्स, है ना? इसको आप बोलते हो सूडो फोर्स। यू नो व्हाट इज सूडो फोर्स? फेक, फेक, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल, यू आर ट्रेवलिंग बाय बस और एक शार्प राइट टर्न आया, तो आपको ऐसा फील होगा कि यू आर पुश टुवर्ड्स लेफ्ट। किसने धक्का दिया था? नहीं। अगर एक शार्प लेफ्ट टर्न आया तो यू फील अ पुश टुवर्ड्स राइट। अगेन द सेम केस, ये जो फोर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो जो है नहीं बट आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, किसने पुश किया था क्या हमको? नहीं। ये जो फोर्स आप एक्सपीरियंस करते हो इसका जो सोर्स है ये एक्सटर्नल नहीं है, क्योंकि बाहर से किसने धक्का नहीं दिया। क्यों है? फिर खुद के मास की वजह से। इसको आप बोलते हो सूडो फोर्स, फेक फोर्स which you experience but which does not exist, right? तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए कहां पे वैलिड करना है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड करना है, तो एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना पड़ता है जिसको आप बोलते हो सूडो फोर्स। वन मोर एग्जांपल, इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ व्हीकल और गाड़ी ने सडनली ब्रेक मारा, तो यू फील अ पुश टुवर्ड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? और देन व्हीकल अगेन स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग, है ना? होता है ना, कभी कभी गाड़ी में जा रहे हैं, सामने से कोई आ गया तो यू the driver will apply brake, you feel a push towards in the forward direction, right? फिर वो पर्सन जो भी हो पास हो गया and driver again starts accelerating and you feel a push in the backward direction, वो भी जो force है it is again pseudo। then अब यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज यू शुड नो कि एज आई टोल्ड यू, सर्कुलर मोशन, इवन दो द पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड होने के बाद भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ था और यहाँ पे एक एक्सेलरेशन था विच वाज टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपिटल। मतलब ये मोशन क्या हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो गया? नॉन इनर्शियल, राइट? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने की वजह से यू विल हैव टू एड अप अ फोर्स। जैसे मैंने बताया था कि एक फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को क्या करना है? वैलिड करना है, राइट? तो ऑलरेडी रियल फोर्स कहां पे है? अंदर की तरफ। इसको नाम क्या दिया आपने? क्या नाम दिया? सेंट्रीपिटल।
अब इमेजिन करो कि सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होता, फॉर एग्जाम्पल, कुछ ना कुछ तो यहाँ होता ही है, फिजिक्स पढ़ना है तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स इन रियल लाइफ टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस एज एन ऑब्जेक्ट, राइट. अगर मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, कहाँ जाएगा? वेरी गुड, क्यों जाएगा? ग्रेविटी. मतलब इस ऑब्जेक्ट को बैलेंसिंग फोर्स नहीं मिल रहा है, it will fall down, right? Because there was no balancing force. Force was only towards center of earth. Now imagine circular motion में सिर्फ सेंटर की तरफ फोर्स होता, रेडियल फोर्स, सेंट्रीपिटल, तो फिर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म क्यों करेगा? वो तो सीधा अंदर ही आएगा ना. तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बोलेगा नहीं एक ही फोर्स है, बैलेंसिंग तो कुछ है नहीं, तो सीधा वो आ जाएगा अंदर. आता है क्या अंदर? नहीं. ये क्या करता है? क्या करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. मतलब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक दूसरा फोर्स है वहां पे, और वो कहां पे है? अवे फ्रॉम सेंटर. इसको क्या बोलोगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इन अ नटशेल, मतलब समरी, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स which acts on a particle because the motion is accelerated, because the frame of reference is accelerated, right? Non inertial. Then इसको हम लिख लेंगे अच्छे से. डिटेल्स यू विल फाइंड इन नोट्स ऑफ कोर्स. मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही बताने वाला हूँ. सो वी नो दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an accelerated motion. Hence, Newton's laws of motion are not valid. Newton's laws of motion are not valid. क्यों valid नहीं है? Because the frame of reference is accelerated, which means a pseudo force term must be added to make Newton's laws of motion valid. To make Newton's laws of motion valid. और ये जो एक्स्ट्रा टर्म आप ऐड करोगे, इसको आप बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर टू सर्कमफरेंस, राइट? this extra term is known as centrifugal force. And as I told you, centrifugal force is directed away from center. Centrifugal force is a pseudo force which acts since the frame of reference is non-inertial. Direction क्या है इसका? Away from center. Very good. It is directed away from center. Now, जैसे आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन डिराइव किया, वैसे सेंट्रीफ्यूगल का करना है. अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. आई टोल्ड यू, अगर सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स सेंटर. वेरी गुड. लेकिन हमको क्या करवाना है? उसको सर्कमफरेंस पे ही रखना है. मतलब ना टुवर्ड्स आने देना है, ना अवे जाने देना है. इसका मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. डायरेक्शन शुड बी opposite, right? So centrifugal force is given by centrifugal force
is given by, it is given by what? F equal to mv square by r, या फिर m r ओमेगा स्क्वायर, या फिर m v ओमेगा. और इन वेक्टर फॉर्म, in vector form you will have f bar equal to m v square by r cap. यहाँ पे नेगेटिव साइन मत डालना क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है अवे फ्रॉम सेंटर, तो सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स था तो सेंट्रीफ्यूगल अवे है, तो यू डू नॉट हैव टू राइट डाउन नेगेटिव साइन क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको सेंटर से अवे ये होता है आर कैप और सेंट्रीफ्यूगल कहाँ है? अवे है, तो यू शुड नॉट बी यूजिंग नेगेटिव साइन हियर. तो आपको सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखते वक्त आपको करना क्या है? आपको सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव ही रखना है. ये हो गया पहला इक्वेशन. दूसरा क्या आएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप और एम वी ओमेगा आर कैप. आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन. यहाँ तक क्लियर? गुड. अगर यहाँ तक क्लियर है तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन. फिजिक्स में कोई भी थ्योरी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो तो उसका एप्लीकेशन है ना, इसलिए पढ़ते हैं. नहीं तो फिर क्या मतलब है बुक में देने का, है ना? ओनली फॉर यू टू स्पेंड सम टाइम इन क्लासेस. ऐसा कुछ नहीं है. जो कुछ भी यहाँ पे आएगा उसका एप्लीकेशन है और रियल लाइफ एप्लीकेशन है बेसिकली. मैंने आपको बताया था व्हेन यू टेक टर्न ऑन द रोड, जा रहे हो और एक टर्न आ गया, तो टर्न मतलब क्या होगा? इट बिकम्स पार्ट ऑफ अ सर्कल. अब ये पार्ट ऑफ सर्कल है मतलब आपकी गाड़ी कहाँ पे आ गई? सर्कल पे आ गई. तो सर्कल पे आ गई तो अगर आपको सेफली टर्न लेना है तो सर्कुलर मोशन जब जब आएगा तो कौन सा फोर्स कंपलसरी होना चाहिए? सेंट्रीपिटल, राइट? तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए. और कोई भी फोर्स अपने आप नहीं आता, हर एक फोर्स का सोर्स होता है. ऐसा टोल्ड यू, एक ऑब्जेक्ट लिया, रिलीज कर दिया, आपने बोला नीचे गिरेगा. क्यों नीचे गिरेगा? आपने इमीडिएटली बोला ग्रेविटेशन. तो उस फोर्स का सोर्स क्या था? ग्रेविटी. करेक्ट. तो यहाँ पे अगर टुवर्ड्स सेंटर एक फोर्स चाहिए तो इसका भी सोर्स होना चाहिए. कहाँ से आएगा? इमेजिन आप गाड़ी चला रहे हो, यू आर टेकिंग अ टर्न. अगर वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हुआ तो आपकी गाड़ी गई सीधा बाहर. फिर आपका क्या होगा मुझे नहीं पता. maybe you, I will not see you next time. maybe ऐसा होना नहीं चाहिए, सिर्फ बता रहा हूँ. एनीवेज, राइट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से तो लाना पड़ेगा. कहाँ से आता है? टायर और रोड, दे आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब वहां पे है फ्रिक्शन. तो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन. तो लेट अस लुक एट फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन. applications of circular motion, right? तो पहला एप्लीकेशन, एंड एज योर बुक सेज इट, उसका टाइटल क्या दिया होगा देखना पड़ेगा. आई डोंट रिमेंबर. व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक. ट्रैक या रोड. तो यू हैव अ व्हीकल अलोंग a horizontal circular track. horizontal circular track. track मतलब road basically. all right, so what you have is, ध्यान दो यहाँ पे, pay attention here. so what happens is आपके पास एक व्हीकल है and then you have a circular track. अब जब आप सर्कुलर ट्रैक की बात करते हो तो इफ यू रिमेंबर दिस बिकम्स पार्ट ऑफ अ सर्कल. ये पार्ट ऑफ अ सर्कल है ना, मतलब ये आर्क हो गया. आर्क तो पार्ट ऑफ अ सर्कल है मतलब आर्क है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा. एक सर्कुलर ट्रैक का इमेजिन आप जॉगिंग करने जाते हो, एक ग्राउंड है जो सर्कुलर है, आप जॉगिंग करने जाते हो वहां पे सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसका सेंटर कहीं तो होगा. तो इसका सेंटर कहीं तो होगा. जो टर्न आया रोड का मतलब वो एक
कर्वेचर आ गया, आर्क हो गया, उसका एक सेंटर होगा, सेंटर, एंड द रेडियस इज r, राइट। नाउ इमेजिन हमारे पास एक व्हीकल है विथ सम मास, एक गाड़ी है हमारा जिसका मास है m। तो यू हैव अ व्हीकल, लेट मी ड्रॉ अ व्हीकल विथ सम मास m। मास होगा ना कि मासलेस होगा व्हीकल? मास होगा, वेरी गुड। तो यू हैव अ व्हीकल विथ सम मास m and this vehicle is moving over here on this track, good, right? Then तो याद रखो, जब आप एक्सप्लेन करोगे, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कल हम डिटेल में देखेंगे लिखना कैसे होता है एग्जाम में, वो भी बताऊंगा। तो पहले तो सिचुएशन को समझाना पड़ेगा। कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल ट्रैक, राइट? देन we know that this curved track is arc of a circle, which means the vehicle is performing circular motion. But for the vehicle to perform circular motion, the necessary force is centripetal force, which is provided by centripetal force कौन देगा यहाँ पे? Force of friction. So centripetal force, necessary centripetal force is provided by force of friction. किसमें फ्रिक्शन था? बिटवीन द टायर्स एंड सरफेस ऑफ रोड, वेरी गुड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ऑलरेडी पता है, इट इज mv स्क्वायर बाय r, राइट? दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपको 11th स्टैंडर्ड में आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो डोंट वरी, इट इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट? मतलब टू सिंप्लीफाई, अब हम पूरा तो 11th कर नहीं सकते, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। लेट मी टेक माय टू हैंड्स एंड रब इट स्लोली। तो फ्रिक्शन तो है लेकिन कम है, तो मैं एक नंबर असाइन कर दूंगा, मान लूंगा 0.2, क्योंकि फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। 0 मतलब नो फ्रिक्शन, 1 मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन, राइट? तो फ्रिक्शन तो है, लेकिन अब मैं जोर से रब कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन है, ज्यादा है, करेक्ट? तो ये जो म्यू होता है ना, ये आपको बताता है कि फ्रिक्शन कितना। 0 मतलब नो फ्रिक्शन और 1 मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो याद रखना ये। तो म्यू इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच टेल्स यू कि फ्रिक्शन है कितना दो ऑब्जेक्ट के बीच में। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं? टायर और रोड का सरफेस, गुड। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ये दोनों कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, जब कांटेक्ट होगा तभी होगा। एग्जांपल, अब आप बेंच पे बैठे हो, तो आप बेंच पे डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, तो बेंच भी आप पे फोर्स लगाता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। योर एक्शन ऑन द बेंच इज डाउनवर्ड्स और बेंच का रिएक्शन आप पे है अपवर्ड्स, अपवर्ड्स बट नॉर्मली अप। नॉर्मली अप मतलब इमेजिन ये बेंच है परपेंडिकुलर, वेरी गुड। तो नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल इसके लिए ही बोलते हैं। व्हाट इज नॉर्मल? मतलब क्या नॉर्मल का? परपेंडिकुलर। फिजिक्स में नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आप एक बेंच पे बैठे हो, फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग ऑन दिस डेस्क, राइट? तो आपका जो एक्शन है इस बेंच के ऊपर वो है डाउनवर्ड्स, तो योर एक्शन इज डाउनवर्ड्स। और ये जो बेंच आप पे रिएक्शन करेगा वो होता है अपवर्ड्स, और वो हमेशा होता है नॉर्मल। किसको नॉर्मल? सरफेस को नॉर्मल। कौन सी सरफेस को नॉर्मल? कॉन्टैक्ट सरफेस पे नॉर्मल। मतलब आप बेंच पे बैठे हो तो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, mg, और ये क्या कर रहा है? n, राइट? दोनों बैलेंस है ना? नहीं बैलेंस नहीं होता। अगर आपका mg ज्यादा होता तो नीचे गिर जाता, अगर n ज्यादा होता तो ऊपर। ऐसा कुछ हो रहा है क्या गाड़ी चलाते वक्त? होता है क्या? नहीं, अनलेस देयर इज अ स्पीड ब्रेकर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो n इक्वल टू क्या आएगा? mg। तो यहाँ क्या लिखोगे? mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू म्यू mg। mm, सॉरी m और m कैंसल, राइट? तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा? म्यू r g। तो v क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ म्यू r g, राइट? इसको बोलते हो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड टू टेक टर्न,
मतलब गाड़ी को अगर आपको सेफली टर्न करवाना है, सेफली विदाउट गोइंग आउट, नहीं तो गए सीधा बाहर। अगर आपको सर्कुलर ट्रैक पे सेफली टर्न लेना है तो कितना स्पीड होना चाहिए, म्यू आर जी का अंडर रूट। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है हम टाइम पे टायर चेंज नहीं करते, इवन दो हमको बताया होता है कि हर फ्यू थाउजेंड किलोमीटर के बाद गाड़ी का टायर चेंज कर दो, हम नहीं करते, राइट, नहीं करते ना, हमको तो पता ही नहीं होता कितने थाउजेंड किलोमीटर का चेंज करना है, राइट। अदरवाइज इमेजिन गाड़ी का टायर भी अच्छा है लेकिन रोड पे, रोड के हर जगह पे सेम होगा, नहीं हो सकता, कहीं पे फ्रिक्शन कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, तो फिर ये म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। या फिर अगर बारिश का टाइम है, पानी है, तो अब रोड और टायर के बीच में क्या आ गया, पानी, फिर वापस प्रॉब्लम, म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है मतलब आपका सेफ स्पीड टू टेक अ टर्न भी चेंज होगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे डिपेंड करता है। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। स्टॉप हियर फॉर टुडे।